हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो एपिसोड है इज एक्चुअली वन मोर एक्सपर्ट चैट वीडियो। आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू ऑफ दिस। पिछले साल तक मैं कर रही थी। मीरा के आने के बाद आई टूक अ रियली बिग ब्रेक विद दिस वन, बट नाउ आई एम रीस्टार्टिंग दिस सीरीज। मैं मंथ में आई विल ट्राई टू डू 2 एक्सपर्ट चैट्स अलग अलग टॉपिक्स पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यू नो, जो वन ऑन वन मुझे डीएम्स में आते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, फ्रीलांसिंग ऑप्शंस क्या हो सकते हैं फॉर मॉम्स हु आर यू नो प्रोबेबली स्टे एट होम मॉम्स, या जिन्होंने करियर ब्रेक लिया है, या फॉर दैट मैटर एनीवन जिनको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमाने इवन इफ यू डूइंग अ फुल टाइम जॉब। कहाँ से शुरू कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सारी डिटेल्स मेंशन्ड है इन द चैट, सो वॉच इट टिल द एंड आराम से। डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक। इसमें 2 लोगों की मेहनत लगी हुई है। इसके अलावा मैत्री के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स लिंक्ड है नीचे। स्पेशली आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू फॉलो हर पॉडकास्ट। बहुत सारी अमेजिंग बातें होती है उस पर। बट या, फॉर नाउ लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। Hi guys, so today we have Maitri, and this is going to be my first session after almost an year, and who better to start with than Maitri. Maitri has been working as a freelancer for the longest time, like even before the freelance word became like a household thing in India. She has been doing this. I have seen her do so many things. Yani, Maitri, I've been, I think, connected with you since almost 4 years. And I've seen you do everything, like starting from digital marketing, podcasting, like things which we had never heard of. Yani, बहुत सारी चीजें तो मैंने तुमसे ही पहली बार. Podcast was something I never knew that existed in India. There was a market for in India, and that's when you had started it. And from what I know, I think you started doing all of this actually after letting go of your full-time job. You had a bank job, if I'm not wrong, and you decided to let go of that and start this entire thing. And in my audience we have a lot of moms who willingly unwillingly have taken a career break, are in the process or wanting to take a career break. They all want to know कि क्या है, like how does work from home work, is freelancing like a legit thing now in India, are there enough opportunities and things like that. So we'll get into all of that. But before that, I really want you to introduce yourself because I know you're doing at least like 10 things which I'm not aware of. यानी भले मुझे 5 दिख रही है, लेकिन there are at least 10 more which you are doing. So why don't you take us through what you do, your journey? Okay. Okay. So, hi, Prachi's viewers. My name is Matri, as Prachi told you. I am a social media marketer, and I have been a freelancer mostly since 2014, actually. So, I also have a podcast. It is called Little Fixes Podcast, and Little Fixes is a personal growth podcast for Indian women. So yeah, I do these 2 things mostly, but I am also a mother. I am also a wife. I live in Jaipur. So if I talk about my freelancing journey, I used to work in a bank, as Prachi already mentioned. I used to work in a government bank actually, and I quit it in 2011. In the end, towards the end of 2011. और उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस राइटिंग वाला थिंग. उस टाइम पे राइटिंग का थोड़ा थोड़ा आ रहा था, और राइटिंग में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था. As in बैंक की content जॉब मैंने, writing, content writing. हाँ एग्जैक्टली, बैंक की जॉब जब मैंने छोड़ी थी, इट वॉज बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट, और कोई रीज़न नहीं था. फिर जब मैंने ये स्टार्ट किया राइटिंग वाला, मतलब ढूंढना शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है. तो बैक देन आई वॉज इन जर्मनी विद माई हस्बैंड. वहाँ पे इंटरनेट बहुत अच्छा था. उससे पहले इंडिया में इतना बुरा इंटरनेट चलता था, तो हम लोग ज़्यादा जानते नहीं थे क्या हो रहा है. वहाँ पे आई केम अक्रॉस ब्यूटी ब्लॉग्स. उस टाइम आई थिंक इंडिया में बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉग्स नए स्टार्ट हो चुके थे, 2-3 साल हो गए थे आई थिंक, बट मैंने वहीं पर एक्सप्लोर किया. एंड देयर वाज वन ऑफ दीज ब्लॉग्स जहाँ पे मैं कमेंट ज़्यादा करती थी, और जो उसकी ओनर थी उससे मेरा इंटरेक्शन भी होने लग गया. देन व्हेन वी केम बैक टू इंडिया इन 2013, मैं उसको प्रोडक्ट रिव्यूज़ भेजने लगी, ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यूज़. तो वो चलता रहा. देन मे बी शी लाइक्ड कि मेरी लैंग्वेज ठीक थी. तो शी सेड कि तुम मेरे लिए सोशल मीडिया मैनेजर बन जाओ. तो आई हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस थिंग कॉल्ड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजर. सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छा ये है. तो आई सेड ओके, बन जाते हैं. तो मैंने स्टार्ट कर दिया. वहाँ पे आई यूज़ टू डू फेसबुक फॉर देम, आई यूज़ टू डू कंटेंट राइटिंग फॉर देम, प्रोडक्ट रिव्यूज़ नहीं, मतलब बेसिकली फिर हम ब्लॉग लिखना. आई यूज़ टू राइट अबाउट ब्यूटी फीचर्स होते थे, एंड ऑल्सो आई यूज़ टू डू प्रूफ रीडिंग फॉर हर. जो भी लोग अपने रिव्यूज़ भेजते थे उनको प्रूफ रीड करके अपलोड करना, पोस्ट करना. शी टॉट मी एवरीथिंग, क्योंकि मुझे वर्डप्रेस नहीं आता था.
तो उस पर अपलोड करना, फोटोज़ कैसे डालना है, एसईओ थोड़ा बहुत कैसे करना है, वो सब उसने मुझे बताया. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट. एंड दैट Present? ब्लॉग. हाँ, That's 2014. 2014. Wow. यस, यस. तो आई डिड इट फॉर ऑलमोस्ट 2 years. और मुझे मज़ा भी आया, मैंने बहुत सारे कनेक्शंस भी बनाए. इवन दैट ब्लॉग ओनर अनामिका, शी बिकेम अ गुड फ्रेंड, शी स्टिल इज अ फ्रेंड. एंड White फिर She उसके makeup, बाद, right? यस White यस, She वाइट शी makeup. मेकअप. तो उसके साथ रहा हमारा जो अच्छा चल रहा था वो सब. फिर उसके बाद मुझे लगा कि आई शुड मूव टू अ फुल टाइम जॉब, लाइक एक एजेंसी हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आए. तो आई वॉज नॉट अ मदर देन. तो 2016 के बिगिनिंग में आई ज्वाइन एन एजेंसी इन जयपुर ओनली. और वो क्रिएटिव एजेंसी थी. तो वी यूज टू डू सोशल मीडिया एंड वी यूज टू डू शूट्स एंड एवरीथिंग. मतलब जो होता है ना, आई फॉरगॉट द नेम, बट हम लोग पूरी सर्विस देते थे अपने क्लाइंट्स Okay, को. okay. End to end. Yes. हाँ. हाँ, ये तो एग्जैक्ट नाम आई डोंट रिमेम्बर. तो उनके लिए मैंने काम किया. एंड वाइल आई वॉज वर्किंग देयर आई गॉट प्रेगनेंट. Okay. तो व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न आई ट्राइड टू वर्क फ्रॉम होम. लाइक आई सेड कि अब मैं पार्ट टाइम करूंगी और वर्क फ्रॉम होम ही करूंगी. तो आई यूज टू वर्क फॉर 3-4 hours. लेकिन इधाया वॉज वेरी यंग, माई डॉटर, शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज न्यू बॉर्न. तो मुझसे मैनेज नहीं हो पाया. लाइक आई ट्राइड फॉर आई थिंक 4 months. लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे. आई यूज टू गेट वेरी स्ट्रेस्ड ऑल्सो. सो आई टोल्ड देम दैट आई एम क्विटिंग. तो आई क्विट बाय द टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2017. Okay. अब घर में बैठे बैठे भी मज़ा नहीं आ रहा था. तो आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम पेज. बैक देन इट्स नेम वॉज द रिलक्टेंट मॉम. और वहाँ पे आई यूज टू शेयर फनी कोट्स जो मुझे इंटरनेट पे मिलते थे या जो मेरे दिमाग में आते थे, मैं उनको शेयर करती थी. एंड आई थिंक इट एक्टेड एज सम काइंड ऑफ पोर्टफोलियो या सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी, कि हाँ एक लोगों को भी Right. ट्रस्ट आ जाता है ना कि हाँ शी इज ऑन हाँ. इंस्टाग्राम. और उस टाइम इंस्टाग्राम पे ग्रो करना ईजी था Right. compared to what it is today. हाँ. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. और वो पेज भी ठीक ठाक कर रहा था. देन अनामिका, दैट वाइशी की ओनर, शी कॉन्टेक्टेड मी अगेन कि शी हैड स्टार्टेड अ ब्यूटी ब्रांड लाइक मेकअप ब्रशेज एंड ऑल. शी स्टार्टेड डूइंग. शी सेड कि फिर से आ जाओ मेरे साथ एंड आई नीड अ सोशल मीडिया पर्सन हु टू टेक केयर ऑफ माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक प्रेजेंस. तो वो बहुत ही कम टाइम का काम था, लाइक 2-3 hours आपको मोस्टली देने थे. तो आई सेड ओके. उस बीच में मैंने बहुत सोशल मीडिया की पढ़ाई नहीं करी थी बिकॉज आई वॉज बिजी विद अदर थिंग्स. बट उसके साथ काम करने के साथ आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल्सो. एंड बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डूइंग इंस्टाग्राम, आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हर ऑल्सो. लाइक शी शेयर्स हर नॉलेज फ्रीली. तो उसको जो भी पता होता था वो मुझे बताती थी. और जो भी उसके पास कोर्सेज होते थे, यूज टू टेल मी कि ये कर लो, ये कर लो, आई विल शेयर दिस विथ यू. तो इस तरीके से मुझे सोशल मीडिया का धीरे धीरे नॉलेज भी होने लगा. और जब नॉलेज भी आने लगा ज़्यादा तो इंटरेस्ट भी अपने आप आने लग गया. Then I started working for her. And yeah, before I started working for her, I got a tiny opportunity through a Facebook group also. Okay. तो वो भी मैंने थोड़े दिन किया, बट वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया था. तो वी कैन डिस्कस दैट लेटर कि कैसे मिल सकता है. तो फिर अनामिका के साथ आई वर्कड फॉर फ्यू मंथ्स. लाइक मुझे याद है मैंने उस वक्त मैंने ज़्यादा दिन काम नहीं किया. आई वर्क फॉर आई थिंक 6-7 months Okay. अनामिका के साथ दूसरी बार. एंड बिकॉज इट वॉज 2019 एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019 आई स्टार्टेड माई पॉडकास्ट लिटिल फिक्सेस. तो फिर मुझे ये भी लगने लगा कि अब आई नीड मोर मनी. एंड बिकॉज इधाया वॉज स्मॉल बैक देन, मुझे ये भी था कि आई विल नॉट बी एबल टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम. तो इफ आई कीप इधाया एंड आई कीप दिस जॉब, आई कीप माई पॉडकास्ट, तो फिर एंड इफ आई वॉन्ट अ न्यू क्लाइंट आई विल नॉट बी एबल टू डू इट ऑल. Right. तो आई टोल्ड अनामिका कि अभी आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू एंड आई क्विट विदाउट एनी बैकअप. वहाँ पे मैंने छोड़ दिया. एंड नाउ देयर वाज अ ब्रांड, दे कॉन्टैक्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दे सेड दे आर लुकिंग फॉर सोशल मीडिया सर्विसेज. आई डिड नॉट प्रमोट माई सर्विसेज एक्टिवली, बट आई डिड अ टाइनी थिंग जिससे दे डिस्कवर्ड मी. एंड I still work for that brand. Like it's been 2.5 years, and I still work with them. They hi Athar. Say hi. So yeah, तो I took them and they were a US based brand. उससे पहले मैंने कभी भी किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम नहीं किया था. तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ आई कैन डू मोर. मतलब मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रही थी, थोड़े थोड़े पैसे मिल रहे थे. Right. बट जब मैंने वहाँ किया तो वहाँ का
कल्चर एक तो बिकॉज वहाँ पे इतना लोगों को होता है ना, थोड़ा सा फ्रीडम ज़्यादा देते हैं, Right, right. and they are also open to paying more. And the person was Indian, but she's based there, so it was A good easier to mix. manage things. And मतलब उसके बाद से मैंने जब काम करना शुरू किया ना, and then slowly I started increasing my work. तो आई थिंक जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें और चीजें भी कवर हो जाएंगी, तो आई विल हैंड इट ओवर टू यू. So no, but thank you for giving us this background. Or in fact, like you said, in 2014, content writing, yeah, even social media marketing, yeah, social media manager was a term जो आपने नहीं सुना था. Very honestly, a lot of us, even today, like these are new things for us. Content writing तो चलो फिर भी थोड़ा सा, I think it's one of the comparatively known freelance areas. लेकिन ये सब नहीं पता है. You have been in this world as an outsider, लेकिन having visibility to these basics, क्या opportunities, like because I'm asking this for the simple reason that when I asked questions and invited questions for this particular session, her question में there was always a word used कि कोई legitimate work from home opportunities बताओ, कोई genuine work from home opportunities बताओ. So as Indians and as people who have not been exposed to this world, most of the times हमारे लिए work from home जो हम सोचते हैं वो पुराने जमाने की जो MLM वाली opportunities होती थी, या कोई उस टाइप के scams, almost borderline scams होते थे कि जहाँ you pay some money and then you start working. We only have those in our mind. We have very little visibility to actually जो opportunities available है आज के day and age में. So if you can just kind of give us a slight idea कि क्या like how has this world changed over the last few years as a insider, comparative insider, so it would really help. ओके, सो या यू आर राइट कि जो लोगों के मन में इमेज है, उनके मन में यही है, या तो स्कैम होता है या फिर मोस्ट पीपल पे पीनट्स. तो मतलब आप क्या ही कर लोगे सोशल मीडिया पे जाके. अभी भी जब मैं किसी को बताती हूँ ना, तो पीपल स्टिल डोंट नो कि सोशल मीडिया में आप क्या करते हो. दे आर लाइक कि आप क्या उनके लिए फोटो डालते हो, या फिर क्या आप डेटा एंट्री करते हो. कई बार नहीं वो जॉब्स निकलती हैं डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट और ऐसा करके, तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. प्लस कई लोगों को ये भी लगता है कि अच्छा घर से काम करती हो, मुझे भी बता दो, मैं भी कर लूँ. तो पीपल ऑल्सो डोंट रियलाइज कि यू नीड सर्टेन स्किल सेट्स फॉर दैट. अगर कोई कह रहा है कि बिना कुछ जाने बस आ जाओ, घर से बैठे बैठे 40,000 रुपए कमाओ, ऐसे बहुत आते हैं ना, तो दे आर लाइक 99% स्कैम ही होगा. तो फर्स्ट थिंग तो मैं यही बोलूँगी कि आपके पास कोई ना कोई स्किल तो होना चाहिए. भले ही आपने मे बी पहले जॉब करी हो कोई, या like I got lucky, I got someone because it was also the initial days of you had all a this first in mover India. advantage, yeah. हाँ. And you were open तो to like all of this which was coming your way. ये भी बहुत बड़ी बात होती है ना, a lot of times we aren't. हाँ हाँ. तो मेरे ख्याल से मुझे था कि मैं एक तो ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेती हूँ. अभी आई हैव बिकम मोर कॉशियस, बट ट्रस्ट भी बहुत जल्दी कर लेती हूँ. प्लस बिकॉज आई हैड रिलेशनशिप विद अनामिका, कि हम लोग पहले से जानते थे. आई न्यू कि शी इज़ अ जेन्युइन पर्सन. तो इतना नहीं यार, उसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था. लाइक अगर कोई कह रहा है कि इतने रुपए दो बिकॉज वी हैव दिस डेटा टू सिक्योर एंड ऑल दैट, तो प्लीज़ मत दीजिए. तो ये भी था. और तब लोगों को हमारे साथ वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जो ब्लॉग रिव्यूज़ लिखते थे. तो उससे अभी का जो टाइम है, अभी आई थिंक फ्रीलांस मतलब इमेज अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट देयर इज़ मोर ओपननेस कि हाँ फ्रीलांसिंग इज़ अ थिंग जो आप कर सकते हो. और अपॉर्चुनिटी स्कोप ज़्यादा बढ़ गया है. एंड आफ्टर कोविड वी ऑल नो कि ज़्यादा बढ़ गया है, और ज़्यादा बढ़ गया है. और ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पर्सन हो तभी आप फ्रीलांसर हो सकते हो. राइट, इफ यू कैन डू एनीथिंग ऑनलाइन और इवन ऑफलाइन भी फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं. अगर आप फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो. राइट. तो उसके लिए और आपको इंटरनेट का कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है कि सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग ही करनी है. आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हो, मे बी आप लॉयर हो, आप फ्रीलांस लॉयर बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो. लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस. लाइक अगर आप लिंक्डइन पे जाओ या फिर फाइवर पे जाओ, इन सब जगहों पे जाओगे तो आप देखोगे कि भले ही दे पे स्मॉल, बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन स्टार्ट. एटलीस्ट आपको एक हेड स्टार्ट तो मिल ही जाएगा. Because so I quit my job, right, around a month back. Usse around 6-8 months back, I had started looking out for people who I needed to help me, because I had Meera, who was very small. And when I actually went on some of these platforms like Fiverr and all, I realized that her work, like it's important to have a skill, like you said. You can also develop a lot of skills.
but the opportunities लानी starting from like a basic content writing to कोई illustrations बना रहा है, कोई cooking से related चीजें कर रहा है, like courses also, you know, you make courses and all. There are people doing everything, website development and you know, a lot of other things, logo design, graphic design. So I'm sure you have also upskilled yourself in a lot of ways along the way, right? बहुत बार हम जब लोगों को कहते हैं कि वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, पीपल जस्ट वांट टू थिंक कि बस हम मिल गई, करने लगे, बहुत सारे पैसे आने लगे. That's not how it works, and that's why people also get disappointed and don't consider work from home as a real option or a freelancing career as a real career option. क्योंकि we either want it very easy. No one's like, you have taken 2014 to आज हम 2022 में बैठे. You have had a journey, right? You've learned along the way. You've been open and receptive to everything. तो क्या यानी बेसिक अपस्किलिंग विच इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू यू, कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लाइक योर जर्नी, लाइक हाउ डिड यू डिसाइड कि हाँ भाई अब ये मुझे एक क्लाइंट डायरेक्टली, इट लाइक एक्चुअली केम पैसिवली टू मी, बट आफ्टर दैट व्हाट डिड यू डू एक्टिवली टू अपस्किल योरसेल्फ एंड पोर्टफोलियो बनाना, प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक यू नो, फॉर अ न्यू कमर हु डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, हाउ लाइक द फ्यू बेबी स्टेप्स दैट दे कैन टेक टू स्टार्ट ऑफ. तो सी अगर ओके, सो इफ यू वांट टू स्टार्ट, आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आई एम अ सोशल मीडिया पर्सन और आपको लगता है कि आपको भी सोशल मीडिया करना है, राइट? तो फर्स्ट थिंग तो यू नीड अ सोशल मीडिया अकाउंट जिसपे कि आप पहले तो एक्सपेरिमेंट करोगे, एंड देन देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस यू कैन लर्न फ्रॉम. जैसे यूडेमी हो गया, यूडमी पे बहुत आपको सस्ते कोर्सेज मिल जाते हैं और आप इजीली उनमें एनरोल करके चीज़ें सीख सकते हो. थोड़ा सा आप देख लो रिव्यूज़ कैसे हैं, सब कैसा है, और यू विल लर्न समथिंग फॉर श्योर. देन देयर इज स्किल शेयर है. इंस्टाग्राम खुद भी कितने सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है. अगर आप फेसबुक ब्लू प्रिंट आई थिंक उसको बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर दे कि वही है या कुछ और है, तो यू कैन इवन लुक फॉर इट. और उस पर भी ये लोग जाके सोशल मीडिया आपको सिखाते हैं. लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न फेसबुक फ्रॉम फेसबुक, नथिंग लाइक दैट. तो और मोस्टली ये बहुत सारा जो नॉलेज है वो फ्री में भी दे रहा है फेसबुक. उनकी अपनी वेबसाइट पे जाके आप सीख सकते हो, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं. एंड देयर आर ऑल्सो कोर्सेज ऑन कोर्सेरा, जहाँ पे मेटा खुद कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है कि मेटा कोर्सेज दे रहा है. गूगल हैज़ पार्टनर्ड विद कोर्सेरा, तो आप वहाँ पे जाके गूगल एड्स हैं, एसईओ है, ये सब सीख सकते हो, राइट? तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया बिकॉज आई कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड. तो यहाँ पे एवरीथिंग आई एम श्योर मिलता है. हाँ, तो इनसे सीख सकते हो. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम इटसेल्फ जो सोशल मीडिया सिखाते हैं. यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया सिखाते हैं, राइट? तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. एंड ऑल्सो आई थिंक जैसे बोला जाता है कि यू कैन स्टार्ट फॉर फ्री. मान लो किसी के लिए फ्री में सोशल मीडिया कर दो, तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉलर ब्रांड्स हु आर ऑल्सो ओपन टू इट और हु विल पे यू वेरी स्मॉल अमाउंट की ये कर दो. तो यू कैन गेट एन आइडिया कि हाँ कैसे होता है, राइट? तो आप वैसे भी कर सकते हैं. और आपका अगर नेटवर्क में कोई है तो मे बी यू कैन ऑफर योर सर्विसेज. जैसे मान लो आपका अपना ही इंस्टाग्राम पेज है, यू कैन यू नो स्टार्ट ऑफरिंग योर सर्विसेज अपने इंस्टाग्राम पेज पे. लेकिन हाँ, आपको ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग अपना पेज बिल्ड करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये सोशल मीडिया मार्केटर और आपके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. तो सी व्हाट आई डिड फॉर माई, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास पैसिवली एक मैसेज आ गया था अनामिका के बाद की बात, 2020 की बता रही हूँ. तो इंस्टाग्राम, अगर आपने इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उसमें होता है कि जो इंस्टाग्राम पे आपका नेम होता है, नॉट द हैंडल, नॉट योर यूजर नेम, जो नेम होता है वो सर्चेबल होता है. तो जो मेरा नाम था मैत्री, उसके आगे मैंने लिख दिया सोशल मीडिया मार्केटर. एंड व्हेन दैट पर्सन सर्च फॉर सोशल मीडिया मार्केटर ऑन इंस्टाग्राम, माई नेम शोड अप. So she small thing you were mentioning, I did a small thing जिसकी वजह से they found, oh wow, this is amazing. Okay. yeah, and I was also sharing कभी कभी अपने पेज पे I was sharing social media tips also. Back then I did not know कि मुझे आगे चल के इससे क्या करना है. बहुत मैंने प्लान नहीं बनाया था, बट क्योंकि उस वक्त भी मैं सोशल मीडिया पढ़ती रहती थी, मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं सोशल मीडिया टिप्स अपने इंस्टाग्राम पेज पे आई यूज टू शेयर. अभी भी एक हाईलाइट है वहाँ पे पेज पे, तो उस पर आई यूज टू शेयर जो भी मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर से पता चलता था, तो वो मैं करती थी. बट अभी ना यू नीड अ लिटिल मोर देन दैट. एंड आई हैव कम अक्रॉस दिस वेरी नाइस प्लेटफॉर्म कॉल्ड हसल पोस्ट. Yeah, Saloni Srivastav. Yes. So I haven't taken her courses, but I follow her. I see what kind of content she posts, and उसके उनके courses का मैंने reviews भी देखे हैं, और जो वो उनके स्टूडेंट्स शेयर करते हैं मैंने देखा हुआ है. तो शी ऑफर्स अ लॉट एंड द कोर्सेज आर नॉट एक्सपेंसिव. तो लाइक अगर 4-5 थाउजेंड रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा आपको नहीं भी करना है, तो मे बी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर
एंड नो इट्स नॉट अ पेड पार्टनरशिप बिकॉज आई टोल्ड यू Yeah, कि yeah, of course. ऐसे ही है. तो बट आई हैव सीन हर कंटेंट एंड शी इज ऑफरिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन. अगर आप उनके पेज को ऐसे ही इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करोगे ना, तो यू विल कम टू नो कि फ्रीलांसर्स के लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं. She has a तो nice YouTube channel या जहाँ पे she हाँ keeps on making videos like this. Yeah. हाँ, वहाँ भी देती हैं, इंस्टाग्राम पे भी देती हैं. तो आई वुड रेकमेंड कि क्योंकि इंडिया, एक तो सबसे बड़ी बात है कि शी इज़ इन इंडिया, तो वो इंडियन लोगों के पर्सपेक्टिव से देती हैं. क्योंकि मोस्टली व्हेन वी लुक फॉर सच अपॉर्चुनिटीज या सच कोचेस, वी मोस्टली फाइंड वेस्टर्न कोचेस जो मोस्टली Right. यूएस के होते हैं. तो उनका Hmm. पर्सपेक्टिव, उनका वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू. तो इफ़ यू कैन कम फाइंड मोर पीपल लाइक हसल पोस्ट, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं. So, I'm going to link. एक तो मैं हर question के बाद I'm just forgetting, but I'm going to link all of Maitre's handles also नीचे. She has a nice podcast where most of the times women come and they talk about everything, starting from skincare to finances. And these are amazing. Like I always listen to the entire podcast. So I'm going to link those below. आप अलग-अलग platform पे सुन सकते हो. Along with it, Hustle Post Academy का भी मैं link या सलोनी श्रीवास्तव का link I'll leave. So that will help. Maitri also has a good Instagram page, so you can go follow that also. I'm going to leave the link to that also. And yeah, like she said, there'll be some amount of homework that you will have to do in terms of identifying कि क्या you are good at, not necessarily something that you have worked on, but what you are good at. क्योंकि मैंने realize किया कि anyone that I have hired through these platforms like Fiverr and all, honestly, अभी बात करते करते I realized I never asked them कि what's your educational qualification. Okay, I've always asked them, can you show me some of your previous work? तो what is important is probably starting off and like you said कि थोड़ा free में करो या थोड़ा अपने known faces के लिए कुछ करो, and then build a portfolio is what I'm assuming, right? Like have some work to show कि हाँ मैंने हाँ हाँ. ये किया है. I've seen basic things like PowerPoint presentation लोग बना रहे हैं and things like that, and they're charging for that also, right? So there are a lot of opportunities. I think if people go on these platforms, they'll realize कि क्या क्या avenues हैं, and then probably shortlist के आपके लिए what works. And start building a portfolio like Maitri said. Have a social media presence because that's very important for. एक तो थोड़ा सा trust factor like you said is very important, right? अगर आज मैं worksheets भी बेचती हूँ तो a lot of people ask me, like anyone who's not coming through my YouTube channel will always ask me कि cash on delivery है क्या, and I know where they're coming from, right? And then when I share my social media handles, तो comfort आ जाता है कि हाँ भाई, like this is a real person behind the scene. And that's how trust is built. So that is one great thing. If you can do, then I think it's a great thing to start off with. I think you've covered एक और question था in terms of के technical, non-technical के लिए क्या क्या opportunities है. I think you've mentioned quite a few already के क्या क्या photography है, ये है वो है. If there is anything additional that you want to mention, one, I think we've covered that question and we can move to the next one. Yeah, sure. ठीक है ना? So yeah, guys. Honestly, like you can go and look at those platforms. Maitri, if you could help us with some of the platforms, like LinkedIn and all are probably platforms where more of you have to actively search for options and all of that, or people will come looking for you. There are specific platforms like you mentioned, एक Fiverr है. वैसे there are a few specific platforms जहाँ पे यही काम होता है. Like you build a portfolio, you post what you're good at, you post some of your work, and people approach you. If you can help us with some of these platforms. जो अवेलेबल है, जो आपको पता हो, then people can start looking out there. ओके, तो सी मैंने इनमें से कोई भी ट्राई नहीं किया है, बट माई फ्रेंड्स हैव ट्राइड. जैसे फाइवर है, अपवर्क है, इवन देयर इज freelancer.com है, और आई थिंक इनवाटो करके भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दे प्रोवाइड नाइस प्लेटफॉर्म टू बिगिनर्स. और एक चीज़ मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि प्राची ने भी बोला कि जहाँ पे भी आप काम करो यू नीड अ पोर्टफोलियो. इसलिए मान लीजिए आप किसी का अकाउंट फ्री में कर रहे हो, तो उनकी जो इनसाइट्स है या उनके पेज का स्क्रीनशॉट है वो सब आप अपने पास रख सकते हो. यू कैन मेक अ स्मॉल पिच डेक जो आप कैनवा में बना सकते हैं. कैनवा इज़ अ वेरी इजी टू यूज़ फोटो एडिटिंग ऐप जिसमें आप कुछ भी बना सकते हो. तो वहाँ पे जाके आप एक छोटी सी पिच बना सकते हो कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, और अगर आपके पास इनसाइट्स हैं, पोर्टफोलियो है, आप उनको डाल सकते हो. अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा डाल सकते हो, और साथ में उसमें ऐसी चीज़ें डालो अपनी पिच में. मान लो आपने किसी का भी सोशल मीडिया नहीं किया है बट आप अपना किया है, और आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है. जैसे इफ़ आई टॉक, तनिष्क का एक रिसेंटली ऐड आया था जिसमें उन्होंने मदरहुड के एक्सपीरियंस को जॉब के एक्सपीरियंस से कनेक्ट किया था. तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू. तो मुझे लगता है कि जो हमारी लाइफ में भी हमने कई सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं. तो हमें थोड़ा सा ना अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा चढ़ा के दिखाना होगा कि हाँ, अगर मैंने ये, मान लीजिए पहले मैं
लॉयर थी लेकिन अब मैं सोशल मीडिया करना चाहती हूँ, तो वहाँ मैंने कुछ तो सीखा होगा ना विच आई कैन रिफ्लेक्ट हियर। या फिर और अगर आप सोशल मीडिया स्टार्ट करो तो मे बी आप किसी लॉयर के लिए सोशल मीडिया कर सकते हो, किसी लीगल फर्म के लिए सोशल मीडिया कर सकते हो, मतलब आप किसी तरीके से अपने पुराने एक्सपीरियंस को अगर नए एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर सकते हो ना, तो नथिंग लाइक दैट। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि जो पोर्टफोलियो है, आपका पिच है, बहुत मतलब बहुत ये नहीं है कि बहुत डिजाइनर हो कुछ हो, लेकिन एक बेसिक सा क्लीन सा सुंदर सा हो जिसको आप कोई भी पूछे आप उसको दिखा सको, और मार्केट रेट का आइडिया हो थोड़ा बहुत। आपको नहीं है तो आप फाइवर पे देख लो क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत एक आइडिया लेके डाल सकते हो, और मे बी यू कैन कनेक्ट विद समवन एक्सपीरियंस्ड इन योर ओन फील्ड। लाइक मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते थे पहले कि कितने रुपए मिल जाते हैं, और अभी भी मेरे पास पॉडकास्ट के लिए मैसेज आते हैं कि हाउ मच कैन वी अर्न फ्रॉम पॉडकास्ट, हाउ सून वी कैन अर्न फ्रॉम अ पॉडकास्ट। तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट इस तरीके की चीज़ें आप लोगों से सीख सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर कोई कोई भी नॉलेज शेयर नहीं करेगा। देयर आर पीपल हु आर ओपन टू शेयरिंग, मे बी नॉट एवरीथिंग, बट दे कैन गिव यू पता चला तो इतना अच्छा। हाँ, कि हाँ देयर आर अपॉर्चुनिटीज। तो क्योंकि अगर कोई कर रहा है इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी। इट्स नॉट लाइक कि 50 लोग कर रहे हैं तो मेरे लिए तो जगह है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 50 लोग कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि अगर कोई 51 आएगा तो उसके लिए भी जगह है। बिकॉज अब सोशल मीडिया हो या कोई भी फील्ड हो, एवरी वन इज लुकिंग फॉर, सी अगर आप घर से काम कर रहे हो तो यू डेफिनेटली are cheaper than someone who is working in an office, especially if you are starting out. So many people are willing to give opportunities also. Like कई बार मेरे साथ क्या होता है कि if I tell people my price, तो they are like इतना ज़्यादा, ये काम तो मैं 8,000 रुपये में करवा लूँ। तो आई एम लाइक ठीक है आप करवा लो, इट्स अप टू यू, बिकॉज आई चार्ज फॉर माई एक्सपीरियंस जो मैं 8 साल से कर रही हूँ, राइट। मे बी मुझे एक पोस्ट बनाने में आधा घंटा लगता है, बट अगर आप ये बोलो कि तुमने तो आधे घंटे में बना दी, वाई आर यू चार्जिंग सो मच फॉर दैट, तो मैंने वो चीज़ 8 साल में सीखी है ना, तो आई विल चार्ज फॉर दैट। बट इफ़ यू आर ए न्यू कमर और आप उस जगह से आ रहे हो तो आपका चार्ज भी अलग होगा। एंड मतलब मैं दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके ये भी बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आप कोई बिजनेस हो या आप फ्रीलांसर हायर करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ रिस्पेक्ट देयर स्किल्स, बिकॉज घर पे बैठ के वो आराम नहीं कर रहे, काम तो कर ही रहे हैं। दैट्स वाई यू आर पेइंग देम, दैट्स वाई यू आर लुकिंग फॉर देम। तो उनके एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके टाइम की रिस्पेक्ट कीजिए, एंड या इट कैन बी अ ग्रेट थिंग टू डू। Adding on to this, since you mentioned कि शुरू में हो सकता है because you don't have a body of work to show, तो लोग और सबको ये क्वेश्चन होता है कि मैंने किया नहीं तो क्यों कोई मुझे हायर करेगा। I'll just give you a simple example. So recently when I was looking on Fiverr for someone to work on something, I had a budget constraint, right? And my work was basic. मुझे पता था कि कोई भी normal skill वाला बंदा कर लेगा ये. First I started looking for people who had great testimonials, who had like a rating and all of that. And then I realized all of them are outside my budget. And my brother said, why are you looking for someone who has so much experience? मेरा काम basic है, उल्टा search करो. Like look for someone who is new, who is not charging as much and who also wants to get that first piece of work. तो वो थोड़ा enthusiastic भी ज़्यादा होगा, अच्छे से करेगा. And I did that and it worked wonderfully. So there would be people like me, I'm assuming. A lot of small businesses also come on this platform. यानी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके budget के constraints होंगे. They'll give you your first piece of work, just like it doesn't happen overnight like Maitri said. So that's one thing जो एक रखना पड़ेगा दिमाग में, क्योंकि लोगों को लगता है this is an easy way out. It's not, definitely not. And I'm sure Maitri, like you'll be able to tell us more there. Like you worked in a corporate setup as in a government bank, but like a proper, employer relationship you have been there, and you've worked with a general company and in general as a freelancer also. So how easy or difficult? यानी compare अगर मैं करूँ, so what do you think? What are the good things about doing something like this in terms of both effort? I'm sure time आप जितना invest करते हो, flexibility there versus like there must be times when there are deadlines जो आपको normal work culture में you can say today is a Sunday, I won't work here. It will be a little different. And from a money perspective, like how do you think this world is right now in terms of the opportunity? ओके, तो मनी का तो ऐसा है कि इट इज़ ऑन लाइक नहीं, एंटायर स्पेक्ट्रम कवर हो चुका है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हर तरीके का आप अर्न कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट, योर नेटवर्क एंड योर लक। थोड़ा सा लक भी काम करता है। कई बार होता है कि एकदम से कोई मिल गया, आपने हाँ बोल दिया, लाइक कहते हैं ना राइट पीपल एट द राइट टाइम, वो चीज़ भी होती है कई बार। तो अगर मैं कंपेयर करूँ फुल टाइम जॉब विद फ्रीलांसिंग, तो प्रोज एंड कॉन्स तो हैं। लाइक मेरे लिए एक चीज़ तो ये है कि आई हैड दिस प्रिविलेज कि मुझे फाइनेंस का इतना इशू नहीं था, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज वर्किंग। तो मुझे था कि मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ।
तो आई वॉज नॉट वरीड अबाउट मनी, तो आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. तो किसी ने 5,000 रुपए भी दिए तो आई वॉज लाइक, व्हेन आई वॉज स्टार्टिंग आउट आई वॉज लाइक ठीक है मैं कर लूंगी, राइट. तो इस तरीके से किया. तो इसमें ये है कि हाँ, ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ फिक्स्ड इनकम. हो सकता है इस महीने आपके पास 50,000 आए, अगले महीने आपके क्लाइंट ने बोल दिया कि भाई अभी अब हमें नहीं करवाना है, वी हैव फाउंड समवन एल्स, या कुछ भी रीजन हो, तो फिर आपकी इनकम 20,000 हो गई, राइट. तो इसलिए थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है. एंड इनफैक्ट आई डिस्कस दिस इन वन ऑफ माई पॉडकास्ट एपिसोड्स ऑल्सो. तो उसमें क्या होता है कि इसलिए इफ यू आर फुल टाइम फ्रीलांसर एज इन आप सिर्फ फ्रीलांसिंग ही करते हो, तो यू हैव टू हैव अ रोस्टर ऑफ क्लाइंट्स. आप आराम से नहीं बैठ सकते कि मेरे 5 क्लाइंट हो गए, आई एम अर्निंग अ लाख पर मंथ, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है अगले महीने, कोई जरूरी नहीं है कि वो पांचों के पांचों क्लाइंट्स रहें. तो इसलिए यू ऑलवेज नीड टू हैव वन एक्स्ट्रा क्लाइंट. लेकिन इसमें ना थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि वंस यू स्टार्ट अर्निंग अ सर्टेन अमाउंट, फिर आपको लगता है कि अब इससे कम तो मैं जा ही नहीं सकता. तो यू गेट इनसिक्योर. मैंने ऐसा किया हुआ है कि 5 करे, फिर उसके बाद ये चला ना जाए तो छठा ले लिया, अच्छा कोई और मिल गया वो भी ले लो. एंड आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड द राइट पर्सन टू वर्क अंडर मी, वर्क विद मी. तो आई हैड टू गो थ्रू बर्न आउट एंड एवरीथिंग. देन आई गेव अप अ लॉट ऑफ अकाउंट्स. तो मतलब थोड़ा सा आपको प्लान करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी इनसिक्योरिटी पे भी वर्क करना पड़ेगा. तो अगर हम लोग फाइनेंशियली बात करें, अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, येस देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन वर्क अराउंड योर रूटीन. एंड बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम, तो मेरे लिए मेरी बच्ची को मैनेज करना और थोड़ा ईजी हो जाता है. बट ऑल्सो बिकॉज यू आर ऑलवेज फ्रीलांसर, जो आपका जॉब है, यू आर ऑलवेज दैट, यू आर ऑलवेज अ मदर, यू आर ऑलवेज क्या बोलते हैं, केयर टेकर ऑफ योर होम. तो आपको सारी चीजें एक ही साथ करनी. लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू अ ट्रेडिशनल ऑफिस, आप ऑफिस में जाके घर से कट ऑफ हो जाते हो, राइट. आप ऑफिस में सिर्फ ऑफिस पे फोकस करते हो. बट अभी मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद मुझे पता है कि मुझे अपनी पॉडकास्ट का कुछ काम करना है, वो मैं कर रही हूँ. मुझे याद है मैंने खाना नहीं बनाया, फिर मुझे खाना भी बनाना है. तो सारी चीजें दिमाग में आपकी चलती रहती हैं. इसलिए आप हर वक्त वो चीज़ हो. इसलिए जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, घर से काम कर रहे हो, तो यू नीड टू हैव वेरी क्लियर बाउंड्रीज. यू नीड टू नो कि कितना टाइम आपको किस चीज़ को देना है. अगर आपने सोच लिया है कि आपको अपने फ्रीलांस वर्क को 4 घंटे देने हैं दिन में, तो 4 के 5 मत होने दो. नहीं तो इतना गंदा वाला इम्बैलेंस होता है ना, फिर यू फील गिल्टी और हर चीज़ हेवायर हो जाती है. फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आता, फिर लगता है मैं क्यों कर रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं जॉब ही कर लेती. तो पेशेंस चाहिए. और ये जो बाउंड्री वाला सीन है ना, ये धीरे धीरे आता है. अभी भी आई एम नॉट 100% एट इट. और मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, बैलेंस नहीं होता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है आपको, और उसी के अंदर आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ती है कि मुझे कब क्या करना है. और ऐसा नहीं है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 1 से 2 बजे तक अपना काम करूंगी, 2 से 3 ये करूंगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ऐसा ही हो. तो यू हैव टू बी ओपन टू दोज काइंड ऑफ सिनारियोज ऑल्सो, कि हाँ ये मेरा जो प्लान है ये गड़बड़ हो सकता है. तो फ्रस्ट्रेट ना होके, गड़बड़ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, या अब गड़बड़ हो गया तो अब मैं उसको कैसे मैनेज करूंगी. ये सब चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी, बट ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Ongoing hai. I think this process is ongoing. You learn along the way, and I think you become a better person also. So that's great. Nothing like that. But great. I think we've got a lot of insights. And in general, like I want to say, because I have a little visibility into your words, so in general, I want to say कि if you are someone who wants to start, एक बार शुरू करोगे ना आप, like you will be surprised how the ball gets rolling, right? Initial आपको 1, 2, 3 साल शायद थोड़ा सा, and have that in mind कि करना पड़ेगा, struggle, you'll have to work on your skills and everything. But I've seen Maitri, like while I was talking, मुझे याद आ रहा है कि I'd seen her once offering a course on one platform for Canva. Like you mentioned Canva, मुझे याद आया कि one of the time I did workshops for Canva also. यानी आप एक स्किल डेवलप करोगे, उस स्किल को आप कितने अलग अलग तरीके से मोनेटाइज कर पाओगे. लाइक वन कुड बी एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म, वन कुड बी ट्रेनिंग पीपल फॉर दैट प्लेटफॉर्म, इट कुड बी एन नंबर ऑफ वेज. और आजकल वो वर्ल्ड हैज थैंकफुली ओपनड अप एंड इट विल ओनली गेट बेटर फ्रॉम हियर. हाँ, like I do social media, I can also teach social media, like my friend does it. तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक चीज कर रहे हो तो उसी में फिक्स हो जाओ. आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप एंड टू एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट ही करो. आप सिर्फ स्ट्रैटेजी बना के भी दे सकते हो एक पेज को कि भाई ये स्ट्रैटेजी है या ये कंटेंट कैलेंडर है, फॉलो इट. तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप करने लगते हो ना तब आपको समझ में आता है. करने लगना इज द की. Great, यार मैत्री. As in you've given, like I myself, जबकि I think I consider myself as an aware person, लेकिन इसमें से 60-70% things I didn't know, including the Instagram handle का searchability वाला part, which I'm going to try today only.
So thank you so much for such an insightful, conversation. And I'm glad I did this with you. Yani pehla, after a long time, I did this with you. थोड़ा सा मुझे intimidating लग रहा था because I was like, मैत्री का podcast वाला पूरा setup होगा, mic and all, and मैं यहाँ Zoom अपनी laptop screen के सामने बैठी होगी, so it's going to be. But yeah, thankfully this was great, and I'm very very happy to start this with you. Thank you so much. Like I said, everyone, I'm going to leave all the links, handles in the description box. So you can go follow Maitri. Like, so much valuable content comes our way every week. So I'm sure you'll enjoy that. And thank you, Maitri, so much for coming. And hopefully I'll have you sometime again, because I'm sure you have a lot more to share. So sometime in future we'll do this again. Okay, sure, Prachi. I would love to be back. And thank you so much for giving me your platform.